Special mention, Dr. Ami Agnik. Ami Agnik. Thank you, Honorable Chairman, sir, for permitting me to make this special mention on the need for special arrangements for differently abled persons in educational institutions. Sir, differently abled persons need special arrangements for their mobility and independent functioning. The Persons with Disabilities Act 1995 indicates that differently abled persons should have access to education at all levels. Universities and colleges should involve in special education activities to empower differently abled persons. The colleges and educational institutes should create special facilities such as ramps, rails, and special toilets and make other necessary changes to suit the special needs of differently abled persons such as special aids and appliances for their daily functioning. Though there are various schemes of the Ministry of Social Justice and Empowerment or procurement of assistive devices, higher education institutes may also need special learning and assessment devices to help differently able students enrolled for higher education. Sir, in addition, visually challenged students need readers. Availability of devices such as computers with screen reading software, low vision aids, and scanners in the institutes would enrich the educational experiences of differently abled persons. Therefore, I request the government to aid colleges and educational institutes in procuring such devices and provide facility of readers for visually challenged students. Sir, setting up special guidance centers in universities and education institutes for differently abled students is the need of the hour. Thank you, sir. Ma. Dr. Bhagavat Karad. Yes, sir. Honorable Chairman, sir, education provides a strong foundation for the overall growth of the region. There is importance of having a very strong educational foundation in the socio-economically lagging regions. Sir, there are three key reasons for my humble request to you to consider the establishment of the Indian Institute of Technology at Aurangabad, Maharashtra. The city has matured and a large industrial auto base. The city has a good educational ecosystem. For the balanced growth of Maharashtra, the Marathwada region needs to be supported. Within the state of Maharashtra, the Marathwada is on the lower side of the Human Development Index per capita income and has a substantial drought-affected area due to less and inconsistent rains. Hence, a series of boosters are needed in various sectors of Marathwada for its socio-economic development. Sir, there are 6 regions in Maharashtra. Mumbai is the financial capital, Pune is the educational hub, Nagpur has IIM and AIIMS, Nasik has a strong agriculture supported by industry, and Konkan is famous for tourism. Hence my request to have a balanced growth of the state, it is requested to have a IIT Institute at Aurangabad. Sir, with the strength of the mature base of auto industry and upcoming growth of other industry and DMIC in Aurangabad, there is a presence of educational ecosystem and need of socio-economic development of this region. An institute like IIT will change the mindset and will become a brand of Marathwada region. Sir, required infrastructure is available there. I feel that the institute at Aurangabad should be established as an extension of IIT Bombay or a new institution with focus on mechanical production and computer engineering. मैं आपके माध्यम से सर केंद्र सरकार को विनती करता हूं, महाराष्ट्र का बैकवर्ड रीजन में मराठवाड़ा में औरंगाबाद में आईआईटी इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें. धन्यवाद सर. धन्यवाद जी. प्रोफेसर मनोज कुमार झा. Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me this special mention which is on demand for bringing law for the regulation of online hate speech. So, the use of the online sphere for spreading hate speech is reaching new heights. The misinformation drives, extreme contents, and fake news have turned the internet from a discussion platform to a perilous zone which harms an individual's psychology, especially children and first-time users. Even the news channels deliberately broadcast TRP-centric news without or contrary to officially known facts. Thus, I request to bring legislation to regulate the problem of online hate speech. Legislation should aim to detect, monitor, and safeguard against
coordinated unauthentic behavior, the misuse of online accounts, bots for the spread of hate speech, and the deliberate broadcasting of fake news. The legislation should enable, sir, to have measures to be taken to improve information disclosure about paid content aimed at spreading hate speech for a political end. Such legislation should be introduced only after having a considerable discussion with the stakeholders to create a proportion between the censorship of harmful content and freedom of speech and expression, as well as to realign the platform's fiscal-driven incentives with the public interest, sir. I request to include internet education in the school curriculum to impart basic internet knowledge and sensitize children about the responsible use of the internet and the risks of hate speech and abuse. Besides, educate first-time internet users about the internet's enormity and complexities, sir. It may help sensitize about the internet's fear and the prevalence of hateful and harassing material on its various speech channels. Thank you very much, sir. Good. Very important. जिनको एसोसिएट करना नाम भेजते श्री संजय सिंह। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान शिक्षा और शिक्षकों की दुखद स्थिति पे दिलाना चाहता हूं। महोदय, भारत में शिक्षकों का उत्पीड़न खत्म नहीं हो रहा है। इतिहास में भारत की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण योगदान था, केंद्र था शिक्षा का, लेकिन आज विश्व के शिखर पर 400 विश्वविद्यालयों में से केवल 2 ही भारतीय संस्थान हैं। इसका कारण यह नहीं कि अब भारत में शिक्षकों की योग्यताओं में कमी आ गई है, बल्कि यह कि शिक्षकों को उनके मेहनत के बदले बराबर प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ यह कहा जाता है कि शिक्षा के अलावा कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे शिक्षकों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर ये शिक्षक अपर्याप्त वेतन के कारण, संविदा अनुबंध, पदोन्नति का अभाव जैसी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप जम्मू कश्मीर में लगभग 1747 ऐसे संविदा आधारित शिक्षक हैं जो सिर्फ 4,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्रदान की जाती। वहीं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षक कई दिनों से संघर्षरत हैं। इस संस्थान में नए शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति को लेकर शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। भारत में पहले से ही शिक्षकों एवं संस्थानों के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है और फिर ऊपर से इनकी आय और नौकरियों को भी असुरक्षित बना दिया जाए तो हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संस्थानों को मान्यता दिला सकेंगे। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए उचित कार्रवाई करें। माननीय। धन्यवाद। ये कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा अनुबंध दोनों लिखा हुआ है सर। अच्छा लिखा है, मैं देखा, मैं सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। संविदा। अच्छा, विश्वम्बर प्रसाद जी। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से लोक महत्व के विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। देश में सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा किसानों की बेशकीमती ज़मीनें औने पौने दामों में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाली कंपनियों द्वारा अधिग्रहण किया गया है, जिसमें शपथ पत्र द्वारा किसानों को लिखित दिया गया था कि प्रत्येक किसान परिवार को योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी देंगे। देश में मध्य प्रदेश के रीवा जिला व कर्नाटक के पावगाड़ा सोलर प्लांट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिले बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन में पावर एनर्जी के प्लांट लगाने हेतु किसानों की ज़मीनें ली गईं, लेकिन वादे के मुताबिक नौकरियां किसान परिवार को नहीं दी गईं। जनपद बांदा के ग्राम चेतारा में औद्योगिक सौर ऊर्जा प्लांट हेतु 165 एकड़ बेशकीमती ज़मीन किसानों से जरिए बैनामा ली गई तथा नौकरी प्रत्येक परिवार को देने का हलफनामा दिया गया। प्लांट लगने के 1 साल के अंदर कुछ लोगों को जो नौकरियां दी गई थी उन्हें निकाल दिया गया, जिससे किसानों में आक्रोश है, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि अब वो भूमिहीन हो गए हैं।
मजदूरी के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए सौर ऊर्जा प्लांटों में नौकरियां दिलाया जाना आवश्यक है। अतः सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों की बेशकीमती जमीनों पर लगे सौर ऊर्जा प्लांटों की कंपनियों से वादे के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार को नौकरी दिलाने हेतु आदेशित करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नाम भेज दीजिए। आगे श्री प्रशांत नंदा जी। प्रशांत नंदा। Chairman, sir, my topic is forest, the implementation of Forest Right Act 2006. To expedite the process of implementation of Forest Right Act 2006 in the state of Odisha, proposal for constitution of 160 numbers of forest right sales in each Tehsil, subdivision office and district headquarter of tribal dominated districts was submitted to Ministry of Tribal Affairs or for placement of requisite fund amounting to rupees 8 crores under special central assistance or sub-scheme, tribal sub-scheme of the year 2020-21. Though this has been agreed upon in the review meeting taken up by the Secretary, Ministry of Tribal Affairs 2020-21 held through virtual mode on 2/9/2020, but the fund has not yet been sanctioned. Despite reminder and discussion in the last review meeting held by the Secretary, Ministry of Tribal Affairs through virtual mode on 12/1/2012. This may kindly be expedited for the larger interest of the forest-dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. Thank you. धन्यवाद प्रशांत नंदा जी। श्रीमती वंदना चौहान। समय बच गया मैम। Okay, thank you very much, sir. So, according to a Lancet report published in 2018, household air pollution claims the lives of almost 500,000 Indians and also is a cause for major lethal diseases. Sir, in the light of this, naturally, therefore, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, which boosts the use of clean cooking fuel and helps control these related diseases, came as a solace and the right step of the government in that direction. So it was also heartening that in a very short time, the government claimed success in achieving 98% coverage of LPG pan-India. However, sir, this seems to be very short-lived as some of the reports and surveys which have happened through several agencies and the government itself, and to cite a few, the CAG report, the National Family Health Survey 5, the 76th survey of the National Statistical Office in 2019, it shows that shocking and startling revelations of misuse and mismanagement, number one, that in spite of the 98% coverage claimed, it shows surprisingly that only 20% increase in the actual usage of clean cooking fuel from 2015 to 2020. Further, sir, many other parameters which show 44.5% of rural households still using firewood, chips and crop residue, etc., meaning thereby that even now the usage of LPG cylinders is very low. And so therefore reaffirming that providing cylinders is one thing and putting it to use another. Sir, I would like to bring to the notice of Your Honor, sir, that 220 million Indians sustain their life in less than rupees 32 a day. That is 44 million families living under less than 4,800 rupees a month. So affordability is a major issue. The process to secure the refill is also another major issue. Under the DBT, the beneficiary has to pay the amount and then wait for the subsidy to come into his account. So a huge challenge for the poor families, sir. I sincerely urge through you, sir, that the government should reconsider, restructure the Ujjwala scheme, and additional monetary incentive be given to encourage refills, as recommended also by the Committee on Petroleum and Natural Gas in 2020, and a system be devised that is practical and works for the poor. Thank you, sir. समीर वरम। कल रेलवे के ऊपर चर्चा हुआ, आप नहीं थे? नहीं थे सर, तो वो
समय नहीं मिल पाया, इसलिए पूरा नहीं कर पाए। तो एसी कोच में आप पहुंच नहीं पाए। जी। दुमका बोले। सभापति महोदय, मैं अपने गृह राज्य झारखंड में रांची दुमका इंटरसिटी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है, उस ट्रेन में एक एसी कोच जुड़वाने के संबंध में बताना चाहता हूं। रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस रांची से खुलती है और राज्य के महत्वपूर्ण जिले बोकारो एवं धनबाद से होते हुए दुमका पहुंचती है। महोदय, साथ ही प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल देवघर एवं बासुकीनाथ भी इसी रूट में आता है। गौरतलब है कि बोकारो स्टील प्लांट सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद कोल माइनिंग के लिए जाना जाता है, इसको हम कोल कैपिटल भी के नाम से भी जानते हैं। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र होने के कारण रेलवे के इस रूट पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन इंटरसिटी से प्रतिदिन होता है। इसी रूट पर देवघर भी है, जो प्राचीन तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव की पूजा करने श्रद्धालुगण भारी संख्या में आते हैं, जिसमें बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी होते हैं। इसके साथ ही वासुकीनाथ भी लाखों लोगों का आराधना के लिए वहां आते हैं। आम जनता की परेशानी के मद्देनजर और विशेषकर बुजुर्ग और महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक एसी कोच बढ़ाने की मांग लंबे समय से है महोदय। इसलिए वर्तमान में इस ट्रेन में एक एसी कोच बहुत आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं। रांची से दुमका जाने में कितना समय लगता है? लगता है रात में 9 बजे जाती है और सुबह में 7 बजे पहुंचती है। इंटरसिटी एक्सप्रेस में? जी सर। इसलिए मैं ठीक है, समझ लिया। माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसी को जोड़ा जाए। श्रीमती गीता चंद्र प्रभा। एनटीपीसी। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से औरैया जिले में स्थित एनटीपीसी व गेल इंडिया लिमिटेड प्लांट में प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों की जा रही उपेक्षा के संबंध में ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। महोदय, एनटीपीसी व गेल की स्थापना के समय प्रशासन द्वारा किसानों जिनकी ज़मीन पर प्लांट का निर्माण किया गया था, उनको स्थायी नौकरी व क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्लांट परिसर में खुलने वाले विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान कराने का वादा किया गया था तथा साथ में दिव्यापुर व आसपास के क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता कराने के लिए भी वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। प्लांट की स्थापना हुए 30 वर्षों से अधिक हो गई, परंतु अभी तक अधिकांश लोगों को स्थायी नौकरी नहीं मिली। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि ऐसे श्रमिकों को स्थायी नौकरी दी जाए। इसके अतिरिक्त बहुत से किसानों की जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें शेष राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। जिले का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी परिषद में स्थित है। पिछले समय कुछ दिनों से विद्यालय को एनटीपीसी प्रशासन के द्वारा बंद करने की बात की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि भूमि विस्थापित लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, केंद्रीय विद्यालय की स्थिति को सुधारने की योजना बनाई जाए व स्थानीय लोगों को समस्याओं का समाधान किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। हीरन कदादी कहाँ? हिरण्णा जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में ये पूछने का अवसर दिया। बेलगावी के कर्नाटक के उत्तर पश्चिम भाग से एक औद्योगिक क्षेत्र है, जहां वर्तमान में 36 बड़े उद्योग है। उसमें प्रमुख चीनी उत्पादना, पाउंड्री, आयरन, एल्यूमिनियम एवं पॉली हाइड्रोजन कारखाना है। कर्नाटक में सर्वाधिक चीनी कारखाना बेलगावी में है। बेलगावी में एसईजेड जिसमें एरोनॉटिकल और अन्य उद्योग शामिल है। बड़ी संख्या में उद्योग की उपस्थिति के कारण 2 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जो ईएसआई योजना के अंतर्गत आते हैं और इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक उपक्षेत्रीय कार्यालय की बेलगावी में स्थापना करने की आवश्यकता है। इसके अलावा
मैं सरकार से बेलगावी के उद्यम बाग औद्योगिक क्षेत्र में एक ACZ ESIC हॉस्पिटल प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूं, जहां भारी मात्रा में कर्मचारी कार्य करता रहे और अस्पताल न होने के परिणाम स्वरूप आपातकालीन चिकित्सा सहायता संभव नहीं है और प्रक्रिया में समय लगने के कारण उपचार में उनको असुविधा होती है। मैं सरकार से बेलगावी में ESIC का उपक्षेत्रीय कार्यालय और उद्यम बाग में एक अस्पताल स्थापित करने का अनुरोध करता हूं, जिससे कर्मचारी को लाभ होगा और कर्नाटक विकसित होगा। थैंक यू सर। श्री शिव प्रताप शुक्ला। माननीय, मुझे ज्ञात हुआ है कि कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का बात है, परंतु अभी तक वहां के अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए कोई भी उड़ान उपलब्ध नहीं हुई है। मैं काठमांडू, कुआलालंपुर, जापान और बैंकॉक के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की शुरुआत के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। इससे भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग आसानी से आ जा सकेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा एवं वहाँ के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। कुशीनगर से सऊदी अरब और UAE के लिए भी सीधी उड़ान उपलब्ध कराया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का औद्योगिकरण, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इन संस्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उपलब्ध होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः मैं सरकार से कुशीनगर से इन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधे उड़ान संचालन की शुरुआत अतिशीघ्र करने का आग्रह करता हूं, ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित अधिक आर्थिक विकास क्षेत्र में हो सके। धन्यवाद। श्री विनय विश्वम इज देयर? ओके, देन श्री रामचंद्र जंगरा। श्री रामचंद्र झांगरा। धन्यवाद सर। जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं परसों हमारे सदन में जो बिल पास हुआ है गर्भपात के विषय में, उसके ऊपर एक स्पेशल मेंशन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा विषय वो हुआ है और प्रधानमंत्री जी की चिंता दिखाई देती है महिलाओं के सम्मान के प्रति शुरू से ही 2014 के बाद से, और ये बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय विषय है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में कहा था कि मैंने शादी नहीं करवाई, लेकिन जो संबंध पूर्णतः स्वतंत्रता और सम्मान के साथ और पवित्रता के साथ होते हैं, मैं उनको जायज़ मानता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपनी बात में एक बार कहा है कि कोई भी भारतीय नारी किसी भी कृतज्ञता के बदले अपना सतीत्व नहीं दे सकती है। लेकिन जब हम अखबारों में ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि फलां जगह एक भ्रूण पड़ा हुआ था, फलां जगह एक नवजात शिशु को कुत्तों ने नोच लिया, तो पूरे राष्ट्र के लिए एक शर्म का विषय होता है और बड़ी चिंता होती है, सिहर जाता है शरीर इस किस्म की घटनाएं सुन के। और कई बार अखबारों में जब ऐसी बातें आती हैं किसी भी विषय में कि 3 साल से फलां आदमी ने मुझे नौकरी का लालच देकर मेरे साथ संबंध बनाए, कोई कहते हैं कि मुझे 3 साल तक शादी का झांसा देकर संबंध बनाया, तो इस किस्म की घटनाओं से ही ये भ्रूणों का जो इस किस्म के अवैध जो भ्रूण मिलते हैं ये मिलते हैं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि इसमें कानूनी संरक्षण एक ऐसा हो, कोई संबंधों को छिपाए ना, बल्कि उसको ऐसी एक आज़ादी मिले कि वो अपने संबंधों को आराम से बता सके, और इस किस्म की जो शर्मनाक घटनाएं जो होती हैं, जो भ्रूण पड़े मिलते हैं हमारे राष्ट्र के लिए, जो शर्मनाक जो बात है वो ना सामने आए। इस संबंध में एक और मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। टाइम सर, सिर्फ आधा मिनट का, मेरा आधा मिनट का सर। टाइम इज ओवर, क्वेश्चन ओवर में जाना है। चल ठीक है। आज 18:00 6 स्पेशल मेंशंस हम ले पाया आप लोगों का मदद के कारण। धन्यवाद। क्वेश्चन 24